Hello, kids. I hope you are staying safe and happy. This is Anyone Can Learn English series, and we are on part 7 today. In this part, we will be discussing about types of tenses with verbs and helping verbs, and this is advanced version of it. Okay, before we proceed to study, I have a very special announcement to make. Let's go to next page to find out. So we have more than 100 members in our YouTube family. We have more than 100 members in our YouTube family. Isn't that awesome? Yeah? So thank you all of you to make this possible. So this video is about tenses. I will be giving you a quick revision tour, and then we will be discussing about advanced type of continuous tense. Since and for we will be discussing after that definite and indefinite timestamps. Then past, present, future examples I will be taking up, and there is one activity too. So are you ready for that? Say yes. If you are saying yes, you have to stay tuned till end of the video. Okay? So keep watching. Let's go to next page. What is a tense? Let's do a quick revision. A tense denotes the time at which an action takes place. ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये टेंस जो है एक टाइम को डिनोट करता है जिस वक्त वो एक्शन हो रहा होता है या हो गया होता है या होने वाला होता है. So whether sometime in the past, in the present, or will take some time. Last time I also talked about present, past and future time. So present is a gift. There is no doubt about it. So right now, the time which is right now is present. Past, the time which is gone. There is no control on past. The things which are gone, which have happened, we do not have any control on those things. Future, time which is yet to come. भविष्य, जो आने वाला वक्त है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं. That we cannot see. We can only plan it. हम प्लान कर सकते हैं फ्यूचर को, बट वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता. So tenses play a very crucial role in English language. Let's see how. So in my previous video, I talked about basic types of tenses, which are simple, perfect and continuous. If you have not watched that video, go and watch it. I will also give the link in the description box. Okay, so you have to go and first watch that video. Okay, so today we will not be discussing any more about these types. We will only be discussing about perfect continuous, which is advanced version of continuous tenses. And for that we have to first learn since and for. Are you guys ready? Okay, let's go to next page to find more. So what is a perfect continuous tense? So I will first be telling about present perfect continuous tense, also known as present perfect progressive tense. Shows that something started in the past and is continuing at the present time also. तो एक ऐसा टास्क जो हमने बहुत पहले शुरू किया था कभी पास्ट में, वो अभी भी हो रहा है. जब हम उस टास्क के बारे में किसी को बताते हैं तो हम जो टेंस यूज़ करते हैं वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.
the task which is progressive right now as well. Okay, I will give you examples, so stay tuned. So important facts: the present perfect continuous is formed using the construction has, have, been, and verb has to be used here with ing. For example, I have been uploading YouTube videos on my channel since लास्ट मंथ. सो पिछले एक महीने से मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. तो मैंने पिछले महीने स्टार्ट किया था और मैं आज भी कर रही हूँ. तो दैट सेंटेंस, दैट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. हो शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूअस. एंड परफेक्ट मीन्स या हो रहा है, वी आर सो श्योर अबाउट इट कि अभी भी हो रहा है वो, है ना. एंड द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन which is already started and continued up to another action or time in the past. हमने कुछ शुरू किया हुआ था पास्ट में, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पहला टास्क रुक गया, है ना. जैसे हम बारिश होती है, हम खेल रहे होते हैं, बारिश शुरू हो जाती है तो हम रुक जाते हैं खेलना, है ना. तो दो टास्क हुए यहाँ पे. एक जो हो रहा था कुछ टाइम के लिए, उसको रोकने के लिए बारिश आ गई या फिर कुछ और ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें पहले वाला टास्क रोकना पड़ा. तो उस टास्क को, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव की जगह कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड. ओके, सो दे आर वन एंड द सेम थिंग, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव. ओके, सो एक एग्जाम्पल देते हैं यही बारिश वाला. We had been playing in playground for 4 hours before the rain came in और rain started, है ना. हम 4 घंटे से खेल रहे थे बारिश में, है ना, सॉरी प्लेग्राउंड में. फिर अचानक बारिश आ गई तो उसके बाद हम रुक गए. So before the rain started, we had been playing in the playground. So this is very simple. The future perfect continuous, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. अब जैसे पास्ट में 2 टास्क हमने डिस्क्राइब किए, ऐसे फ्यूचर में भी 2 टास्क होने वाले हैं, है ना, होने वाले हैं. और एक टास्क है उस टाइम तक होता रहेगा जब तक कि कुछ दूसरा ना हो जाए. वही मम्मी वाला एग्जाम्पल लेते हैं. मम्मी गए हुए हैं मार्केट और सोच रहे हैं जरूर टीवी देख रहा होगा, है ना, है ना. कितने टाइम तक देख रहा होगा? मेरे घर पहुंचने से पहले वो 4 घंटे तक देख ही रहा होगा टीवी, ऐसा मम्मियाँ सोचती हैं, है ना. सो ही हैज़ बीन और ही विल बी वॉचिंग टीवी, और विल हैव बीन यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना. विल बी हैविंग हमने पिछली बार देखा कॉन्टिन्यूस टेंस में. अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यहाँ पे हैव बीन मतलब मम्मी ने कर ही लिया डिसाइड कि हाँ होगा ही. ही will have been watching TV for 3 hours or 4 hours before I reach home. So दोनों टास्क फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे will लगा हुआ है ना. आई होप ये आपको क्लियर हुआ है. और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ पहले हम देखेंगे सिंस और फोर के बारे में. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद सिंस एंड फोर.
अब मुझे ये बताओ, बहुत सारी शॉप्स पे आप गए हो, कभी आप नोटिस करना वहाँ पे लिखा होता है सिंस 1982, सिंस 1989, एडिडास ओरिजिनल सिंस 1949, फुटबॉल सिंस 1967। ये सिंस का क्या मतलब है भाई? सिंस का मतलब है ये डेफिनेटली उसी टाइम पे शुरू हुआ ये काम, जहाँ पे हम बहुत श्योर होते हैं 1982 से ये ब्रांड चल रहा है ना। दिस ब्रांड हैज़ बीन रनिंग सिंस 1982, है ना। एडिडास ओरिजिनल ब्रांड हैज़ बीन रनिंग सिंस 1949, है ना। तो हम श्योर हैं कि तभी शुरू हुआ था ये और आज तक चलता आ रहा है। लोग अभी भी एडिडास के शूज़ खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं। बीकानेर है सिंस 1912, आई एम नॉट श्योर 1912 है क्या है, तो वो मिठाई वाला बहुत फेमस है ना। तो आप कभी भी अगली बार जब शॉप पे जाओगे तो देखना ऐसा कुछ लिखा हुआ है सिंस, कब से वो मशहूर हैं, कब से चलते आ रहे हैं, तो हम सिंस यूज़ करते हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे ये क्या है भाई? सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे फोर यूज़ करते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा ये लड़का बैठा हुआ है and he is on the computer, he is doing something, he is very worried, he seems worried, right? I think he is trying to solve some problem. इससे बात करते हैं, बात की तो पता चला बेचारा 4 घंटे से एक ही काम पे कुछ कर रहा है। अब कौन से 4 घंटे हमें नहीं पता, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 4, है ना। तो he has been trying to solve a problem on computer for 4 hours, है ना। It has been raining for 3 hours, है ना। Kids have been exercising for 5 hours. कौन से 5 hours हमें नहीं पता है, मॉर्निंग के कौन से। See, this farmer is doing something in his field, right? So this farmer has been plowing in his field for 2 hours, है ना। कर रहा है, कब से कर रहा है? 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो इसलिए 4। हाँ, अगर मैं बोलती कि मॉर्निंग से, तो उस दिन की मॉर्निंग इज डेफिनेट टाइम। ही हैज़ बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। जब हम श्योर होते हैं, हम उसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी दिन की मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कौन से आवर्स से उसने शुरू किया है, कब शुरू किया है, तो हम 4 यूज़ करेंगे, है ना। ये देखो, दिस इज़ ए क्यूट गर्ल, दिस गर्ल हैज़ बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। सिंस यूज़ किया। अगर मुझे 4 यूज़ करना है, दिस गर्ल हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। कौन से? अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दूँ, फॉर लास्ट 2 hours, तब भी मुझे नहीं पता चला कौन से, बिकॉज अभी टाइम नहीं पता चल रहा। तो सिंस लास्ट 2 hours इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। क्योंकि अभी अगर मैं टाइम देखती हूँ और पिछले 2 घंटे वापस जाती हूँ, तो भी मुझे पता चल जाएगा कब उसने शुरू किया होगा। तो जहाँ पे मुझे टाइम का अंदाज़ा लग जाता है वहाँ पे सिंस, जहाँ नहीं लगता वहाँ पे 4। She has been riding horse for 3 hours. पता चला कौन से 3 hours? She has been riding horse since evening. अभी रात हो गई है और इवनिंग से ये लगी पड़ी है हॉर्स राइड करने, तो मुझे पता चल गया। तो since कब यूज़ करना है, 4 कब यूज़ करना है, in perfect continuous tense. I hope the idea is clear. Let's go to next page then. So present perfect continuous tense since and for, ये examples हैं। I have been taking classes since December 2019.
Sheila has been studying literature for 2 hours. They have been running in playground for 3 hours. Adidas brand has been or have been running since 1949. तो brand के साथ we can use anything. Okay, since 1949. हमें definite time में since लगाना है, indefinite time में for लगाना है. Let's go to next page. So past perfect continuous tense क्या करता है? इसके examples देखते हैं. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. See? And Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. This is simple. Richard को दूसरा टास्क क्यों जरूरी था? उसने पहला टास्क बता दिया. He had been working so hard for 6 months. कौन से 6 months? We don't know. So 4 is used. He was tired because he had been jogging for about 3 hours. He has left the company now in which he had been working since 1986. Since 1986 एक ईयर है, डेफिनेट ईयर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे since लगाना है. Tom had been traveling around the world since the month of December before he reached here. अब टॉम जो है वर्ल्ड की यात्रा पे निकला हुआ था दिसंबर से, तो दिसंबर मंथ इज डेफिनेट टाइम, सो वी यूज्ड सिंस बिफोर ही रीच्ड हियर. हियर मीन्स एनीवेयर. आई मीन you can say before he reached home. I hope this past tense is also clear. Let's go to next page. Future perfect continuous tense. They will have been playing football in that field before you reach. तुम्हारे पहुंचने से पहले वो यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होंगे. वो इस फील्ड में, इस मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना. तो मैंने समझाया था 2 टास्क हैं, दोनों फ्यूचर में होने वाले हैं. पहले जो होने वाला है ना, पहले जो होने वाला है वो किसी दूसरे के होने से पहले होने वाला है, राइट. सो दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. ये पहला टास्क है, ये हो रहा होगा बिफोर यू रीच. तुम्हारे पहुंचने से पहले ये हो रहा होगा ऑलरेडी. सो वी यूज्ड विल हैव बीन प्लेइंग. I will have been singing different kinds of songs before you join us, है ना. I will have been uploading basic grammar videos before I upload advanced grammar videos. This is so simple. Ruhan will have been watching TV for 2 hours before I reach home. ये वही मम्मी वाला एग्जाम्पल. रूहान देख रहा होगा टीवी फॉर एटलीस्ट 2 hours बिफोर आई रीच होम, क्योंकि मुझे शायद 2 घंटे लगने वाले हैं, इस करके वो पहले 2 घंटे तक देख चुका होगा टीवी. कोरोना वायरस विल हैव बीन अफेक्टिंग मैनी पीपल बिफोर साइंटिस्ट्स लॉन्च ए वैक्सीनेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यू विल हैव बीन वॉचिंग ऑल माई वीडियोज बिफोर आई पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो. सो मेरे नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करने से पहले आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे. अगर नहीं देखी हैं अभी तक, देख लो अभी जाकर. ओके, थैंक यू एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम. yippee. So do you have a notebook around? If you don't have, grab a notebook and a pen or a pencil. Okay, quickly एक नोटबुक लेके आओ, एक पेंसिल या पेन लेके आओ. एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है. फिर हम एक्टिविटी पे चलते हैं. ओके, रेडी? लेट्स राइट आंसर्स टू सिंपल क्वेश्चंस और सिंपल स्टेप्स. सो स्टेप 1 है, राइट अबाउट ए टास्क यू हैव बीन डूइंग सिंस जनवरी 2020. जनवरी 2020 डेफिनेट टाइम है. आई यूज्ड सिंस. सो आपको एक टास्क के बारे में बताना है विच यू हैव बीन डूइंग सिंस जनवरी 2020. ओके. स्टेप 2,
Write about a task you have been doing for last 1 hour. पिछले 1 घंटे से जो आप कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है. ठीक है, टेक योर टाइम एंड आई विल बी रीडिंग स्टेप 3 नाउ. सोच लो उसके बारे में, फिर लिखेंगे. राइट अबाउट ए टास्क यू विल हैव बीन डूइंग बिफोर यू स्लीप. आपके सोने से पहले आप कुछ करने वाले होंगे, उसके बारे में आपको लिखना है. सो यू विल हैव बीन डूइंग, दिस इज फ्यूचर. बिफोर यू स्लीप, स्लीप भी फ्यूचर में होगा, राइट. सो दोनों टास्क फ्यूचर में होने वाले हैं. एक टास्क पहले होगा, दूसरा टास्क बाद में होगा. सो इसके बारे में यू हैव टू write about a task you had been doing in past before watching my video. मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप क्या कर रहे थे उसके बारे में लिखना है, और कितनी देर तक कर रहे थे वो भी लिखना है. जैसे I had been doing my household chores for 2 hours before uploading this video. Okay? Write about a task you had been doing for some time and something else happened which stopped you. So एक टास्क आपने ऐसा बताना है जो आप कर रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ पास्ट में, आपको वो काम रोकना पड़ा. जैसे मैंने बारिश वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट. ठीक है, ये सारे 5 स्टेप आपको एक्टिविटी में करने हैं. और हेयर इज ए क्विक हिंट, यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम द स्टेप स्टेटमेंट. यहाँ पे जो स्टेप हैं आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. जैसे यू हैव बिन डूइंग सिंस जनवरी 2020, तो आई हैव बिन डूइंग दिस सिंस जनवरी 2020. तो ये हिंट है आपके लिए, बहुत ईजी है इसके आंसर्स. यू ऑल हैव टू डू, आई सजेस्ट you do it at least once and practice daily. Okay, and you can also leave your answers in the comment box below if you want. Okay, and I will also check all the answers. Also tell me if you want me to answer all these questions in my next video. यहाँ पे थोड़े spell mistake है, I'm sorry for that. Also tell me if you want me to answer all these questions or steps in my next video. I'll do it. I will definitely be doing. If I get more comments on that I need to do, I will do it. Okay, so I'm focusing again on the steps. So do it, practice it in your daily life. Okay, your English will be improved in no time if you practice daily. सो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी बहुत जल्दी. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. ओके, लास्ट वीडियो रिजल्ट्स. आर यू गाइज रेडी? सो लास्ट वीडियो में मैंने एक टेस्ट दिया था. सो उसके रिजल्ट्स मैं इसमें आई विल कॉल आउट द नेम्स हु गेव द आंसर्स, बट बहुत कम लोगों ने आंसर्स दिए हैं. इनफैक्ट ओनली 2 लोगों ने आंसर्स दिए हैं. तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल टेक द नेम, आई विल कॉल आउट द नेम. सो लेट्स गो टू द वीडियो, टू चेक. ओके गाइज, सो दीज आर द answers. So here is the name Jat series. I think the name of this person is Navtej Singh, because इन्होंने पहले भी आंसर दिए हैं. So first answer is moves, saw, were playing, had arrived, am doing, had written, will be meeting. Okay, I think we should also see the questions. कि questions क्या थे? Okay. The earth moves around the sun. My friends saw the film yesterday. It started to rain while we were playing tennis. Yes, the train had arrived before we reached the station. हमारे
स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन अराइव कर गई थी. एंड डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क. ओके, एंड देन I had written the letter before you arrived. He will be meeting us next week. Let's now go to this page. Yes. So your answers are correct. Very good. And let's go to the second person who gave the answer correct. Moves, saw, were playing, had arrived, am doing, had written, will be. Yes, perfect. And the next answer was given correctly is Dakshesh. Very good. So keep watching, guys. Thank you. If you like the video, give it a thumbs up, share and subscribe my channel too. Thank you so much.